आप लोग सब बच्चे हैं, हमने वो दौर देखा है 1971 के आसपास का, और जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। उसके पहले का जो दौर था, जब आपको खाने के लिए सही चावल नहीं मिलता था, गेहूं नहीं मिलता था, राशन कार्ड लेकर राशन की दुकानों पे रात से पत्थर रखे जाते थे अपनी अपनी लाइनों के लिए। आज बच्चों ने शायद वो देखा नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि उस तरफ आए। मेरे पास फिलहाल कुल 7 नाम हैं जो कहानियां पढ़ने वाले हैं, और यहाँ हमारे साथ जो हैं वो 7 से ज्यादा लोग हैं। मैं ये मान लूं कि 7 ही लोग हैं जो कहानियां पढ़ेंगे, और जो हैं वो बेचारे श्रोतागण हैं, सुनने के लिए आए हैं। अब इसमें भी जिनके नाम मेरे पास हैं, मनीषा जी अभी तक नहीं आई हैं। रूह कहाँ है? रूह आप हैं? रूह है। दिखाई नहीं दे रही है, मुझे नाम नहीं दिखाई दे रहे। फिर उसके बाद फाल्गुनी पारेख, फाल्गुनी हैं, सीतमा है, लता जी आने वाली हैं, प्रतिमा है, रीना पंत है। तो शुरू करते हैं रूह से। रूह हमको सुना रही हैं प्रेमचंद की कहानी पूस की रात। रूह कहाँ है? रूह आप? I think she's disconnected. चलिए, शायद रूह चली गई है छोड़कर। तो फाल्गुनी पारेख से शुरू करते हैं। वो आपको सुना रही हैं चंद्रकांत चोपड़ानी इंद्रजाल। लेखक हैं चंद्रकांत पांड्या पंड्या। फाल्गुनी पारेख। फाल्गुनी, थोड़ा सा बेटा अपनी कैमरे को एडजस्ट कर लीजिए। आप बहुत नीचे चली गई हैं, थोड़ा सा हाँ फ्रेम में आ जाइए, बस ठीक बेटा। जी सर। कहानी का नाम है चोपड़ानी इंद्रजाल और उसके लेखक है चंद्रकांत पंड्या। मैं कहानी की शुरुआत करने जा रही हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। ત્યારે શાહુકારો ગરીબ અને અજ્ઞાન રાણી પર જ ખેડૂતોનું શોષણ કરતા હતા. ઋણ રાહતનો ત્યારે કોઈ કાયદો ન હતો. તેમાં દેશી રાજ્યમાં તો આવા શોષણખોરોને ઘી કેળા હતા. રાજા અને અમલદારોના જુલ્મને ચડી જાય એવી આ શરીફ ડાકુઓની લૂંટ ગરીબ પ્રજાના હાડ માંસને ચૂથવામાં જરાય અરેરાટી નહોતી અનુભવતી. કચડાયેલી પ્રજાનો કોઈ ધણીધોરી નહોતો. રાંકડી, ભોળી, લંગોટિયા પ્રજા મૂંગા ઢોર કરતા બદતર જીવન જીવતી. ઉજ્જળ જમીનમાં થોડું ઘણું પકવે તેમાં રાજા, અમલદાર, ઝઘડું, તલાટી, ભૂવો અને શાહુકાર સૌનો લાગો. પ્રસંગે બધું કામ પડતું મૂકી અને બધાની વેઠ કરવા એ બંધાયેલો. ગુલામથી પણ બદતર જીવન એ જીવે ને ઉજળા ભણેલા લોકો એની લાચારીનો લાભ ઉઠાવે. 1755નું ગણિત ગણનાર શાહુકારના ચોપડાની ઇન્દ્રજાળ એવી કે એની 7 પેઢી પણ ઋણમાંથી કદી મુક્ત ન થઈ શકે. મારા પિતાજીને શાહુકારી કરી પૈસા કમાવાનો કિમિયો કોઈ ભાઈબંધે બતાવેલો એટલે લોભે લોભે ખેતી સાથે ધીરધારનો ધંધો પણ કરતા. પિતાજીને હાવકાર કહીને જ સૌ બોલાવે. પિતાજીનું મૃત્યુ થયું. જમીન ગણોતે ખેડનાર કે તેની દેખભાળ કરનાર કોઈ રહ્યું નહીં.
એટલે અમે મૂળ શેઠને સોંપી દીધી. હવે ગુજરાનના સાધન તરીકે દૂધણું ને પિતાજીની ઉઘરાણી બે જ રહ્યા. વિધવા બાને માથે 2 નાના દીકરા, 1 નાની દીકરી ઉપરાંત 3 પરણેલી બહેનોના વ્યવહાર સાચવવાની બધી જ જવાબદારી હતી. એક નાનું ખેતર બાપુજીને નામે હતું. તે બહુ ઉપજાઉ નહીં, એટલે નાની બહેનના લગ્ન વખતે આર્થિક સંકળાસને કારણે વેચી દેવું પડ્યું. બા બિચારી રાત દિવસ ઢોર વેતરું કરે, ક્યારેય જંપીને બેસે નહીં. કોઈને ત્યાં જરૂર પડી રાંધી આપે, ત્યારે માંડ 2 ટંક રોટલા મળે. બાપુજી શાહુકારીનો ધંધો કરતા, પણ ઘરમાં ભાગ્યે જ કશી બચત મૂકી ગયેલા. એ જમાનો પણ સોંઘારતનો. 10 રૂપિયે હારો ભાત. એ જ પ્રમાણે બધી જ ચીજ વસ્તુઓ. એમાં બચત શી રીતે થાય? એટલે કુટુંબનો બોજો એકલે હાથે ઉચકતા બાને તો 9 નેજા પડ્યા. દીકરામાં હું મોટો, એટલે 14 વર્ષની ઉંમરે ગામડે ઉઘરાણી કરવા બા મને મોકલે. દેણદારો પ્રમાણિક, પણ ખેતીના વર્ષો એક પછી એક એવા ખરાબ આવે કે લેણદારોને રોકડ કશું આપી ના શકે. ક્યારેક થોડું ઘણું આપે, એ તો અમારા કુટુંબને આપદા ન પડે એટલા ખાતર. પોતે પેટે પાટા બાંધી આછું પાતળું ખાઈને પણ જે મળે તે વ્યાજ પેટે ભરી દેતા. ધરમપુરથી 5-1 માઇલ દૂર મરઘમાળ ગામે રાની પરજ કોમના જીવલા નામના ખેડૂત પાસે અમારું લેણું નીકળે. કાંઠા વર્ષોમાં જીવલાની સ્થિતિ બહુ કપરી થઈ ગયેલી. પૈસા તો જે મળે તે આપે, પણ બાપુના મૃત્યુ પછી વર્ષો વર્ષ લાકડા, ડાંગર, કઠોળ, ગોળ, કેરી, શાકભાજી અને ઢોર માટે ઘાસ ને એવું કંઈ ને કંઈ વ્યાજ પેટે ભરે. વર્ષ ગમે તેવું નબળું પડ્યું હોય તોય ભાવકારના પોયરાને આપદા નહીં પડવી જોઈએ, એવી ભાવનાથી કંઈક તો આપવું જ જોઈએ એવું માનતો જીવલો દાનતનો એકદમ શુદ્ધ. જીવલો અવારનવાર ઘેર આવતો. મારા ઉપર પુષ્કળ પ્રેમ. શેરડી, બોર, જાંબુ, કેરી એવું કંઈ ને કંઈ મારા માટે લાવે. તેની સાથે કોઈક વાર તેનો પુત્ર ગોવિંદ પણ ઘેર જોવાની લાલચે આવે. લંગોટી અને મેલું જીર્ણ ડગલું એ એનો પોશાક. જીવલો જુવાનીમાં પણ ખખડી ગયેલો, હાડપિંજર જેવો, તો એનો પુત્ર ગરીબડો, અર્ધનગ્ન દશામાં ખુદ દરિદ્રતાને પણ શરમ આવે એવો. જીવલાના કુટુંબની આવી કરુણ દશા છતાં તેની વફાદારી મુખ સાક્ષી જેવો હું માત્ર જોયા કરતો. બાપુ ગુજરી ગયા પછી બા મને ઉઘરાણીએ મોકલે. મરઘમાળમાં જીવલા ઉપરાંત પણ 1-2 લેણદાર હતા. તેઓ જીવલાની સરખામણીમાં જરા ઠીક સ્થિતિના કહેવાય એવા હતા. એટલે બાને તેમના પૈસા નિયમિત મળતા, પણ જીવલો તદ્દન ભાંગી ગયેલો, પત્ની મરી ગયેલી અને તેનું 12મું કરવા માટે વળી બીજો શાહુકાર કરેલો. એટલે જીવલા ઉપર કડક ઉઘરાણી થાય. રવિવારે બા મને ઉઘરાણીએ મોકલે. ભાતામાં કોઈક વાર સુખડી તો કોઈક વાર શક્કરપારા બનાવી આપે. દિવાળી પછી તો લગભગ દર રવિવારે ઉઘરાણીએ જવાનો કાર્યક્રમ નક્કી જ હોય. નદીમાં નહાવાનું મળે, ઋતુના ફળો ખાવા મળે. ચણાનો ઓળો, શેરડી, બોર, કેરી જે મળે તે પેટ ભરીને ખાવાનું અને ઘર માટે પણ લાવવાનું. સાથે 2-3 મિત્રો હોય એટલે રસ્તો ક્યાં કપાઈ જાય તે ખબર જ ના પડે. એક રવિવારે એ જ રીતે ઉઘરાણી કરવા જીવલાને ત્યાં મરઘમાળ ગામે જવાનું થયું. સાથે મારા મિત્રો મહમદ અને રસિક હતા. બીજે ઉઘરાણી કરવા જવાનું નહોતું એટલે બાએ કશું ભાતું બંધાવ્યું નહોતું. અમે જીવલાને ઘેર પહોંચ્યા તો માલુમ પડ્યું કે જીવલો કામ અંગે કશેક બહાર ગયો હતો. 12 વાગતા તો આવી પૂગવો, એમ ગોવિંદે કહ્યું. એટલે સમયનો સદુપયોગ કરવા અમે એના ખેતરમાં ઉપડ્યા. બોરડી ઉપરથી સરસ મજાના મીઠા રાંદેરી બોર પાડ્યા, ખાધા અને ગજવા પણ ભર્યા. મરચીના છોડ ઉપરથી મરચા તો રીંગણી ઉપરથી રીંગણા તોડી અને થેલી ઠાંસીને ભરી. ગોવિંદે બાવળના દાંતણ કાપી આપ્યા તે લીધા.
નદીમાં નાહ્યા ને જીવલાની ઝૂંપડીએ આવ્યા ત્યારે જીવલો આવી ગયો હતો. તેણે પૂછ્યું, ભીખલા, બપોર થઈ ગયા, કંઈ ખાધું કે ભૂખ્યો જ છે? ડોહાડીએ શું બાંધી આલ્યું છે? મેં કહ્યું, અમે તરત જ પાછા જવાના હતા એટલે ભાતું નથી લાવ્યા. જીવલો કહે, પોયરા, ભૂખ્યો તો નહીં જવા દઉં તને. દાળ ચોખા આપું તો ખીચડી બનાવી નાખ. ખીચડી કે દાળ ભાત મને બહુ ભાવે નહીં, અને એ કડાકૂટ કરે કોણ, એટલે મેં ના કહી. પણ જીવલો એમ માને શાનો? ભીખલાને શીરો બહુ ભાવે એમ કહી ગોવિંદને મોકલી ક્યાંકથી ગાયનું પાશેર ઘી મંગાવ્યું. મોટી દીકરી પાસે ચોખા દળાવ્યા, થોડો ગોળ કાઢીને આપ્યો, 3 પથ્થર મૂકી ચૂલો બનાવ્યો, અને પછી કાંસાના તાંસડામાં લાકડાના તવેથાથી આવડે એવો શીરો મેં બનાવ્યો. જીવલો કેળના પાન કાપી લાવ્યો. ગોવિંદે થોડા કાંદા સમારી આપ્યા અને અમે 3 શીરો ખાવા બેઠા. પ્રેમનો શીરો, એનો આનંદ વળી ઓર જ હોય છે. અમે ધરાઈને ખાધું. અમે જવા નીકળ્યા તે પહેલા જીવલાને પૂછ્યું, જીવલા, થોડાક પૈસા આપશે કે? પૈસાની જોગવાઈ તો હમણાં નહીં થવાની, એમ જીવલાએ લાચારી વ્યક્ત કરી. એટલામાં ગોવિંદ વાડામાંથી વાલોડ અને રીંગણ લઈને આવ્યો. પણ અમારી થેલી તો ભરેલી હતી, એને મૂકવા ક્યાં? મેં જીવલાને એકાદ થેલી હોય તો આપવા કહ્યું. ત્યારે જીવલો કહે, બોડીને તો વળી કાહકી કેવી? જ્યાં ત્યાંથી ફાટેલો કટકો શોધી આપ્યો ને તેમાં રીંગણ અને વાલોળ બાંધ્યા અને અમે ચાલી નીકળ્યા. તે રાતે મને મોડે સુધી ઊંઘ ના આવી. જીવલાના જ વિચાર આવ્યા કર્યા. એક બાજુ જીવલાનો પ્રેમ ને બીજી બાજુ તેની કારમી ગરીબાઈ યાદ આવી. એનું વાક્ય, બોડીને તો વળી કાહકી કેવી, ઘડી ઘડી યાદ આવ્યા કરી. રાત આખી અજંપામાં ગાળી. હું શોષણખોર છું, બોડી જેવી જીવલાની દુર્દશા કરનાર હું જ છું એવો ભાવ જાગ્યો. શીરો જમતા હતા ત્યારે જીવલાના નાગુડિયા અને પેટમાં ખાડા પડેલા નાના છોકરા કેવું ટીકી ટીકીને જોઈ રહ્યા હતા તે દ્રશ્ય યાદ આવ્યું. ભણવા ગણવાની અને રમવાની ઉંમરે કોઈ ગોવાળિયામાં જતો, કોઈ ખેતરમાં ચાર કાપતો કે બળતણ માટે લાકડા કાપતો, કોઈ શેઠિયાને ત્યાં શાહુકારી પેટે વેઠ કરતો. ત્યાં હું બીજો શાહુકાર બેઠો બેઠો શીરો ખાતો હતો. એના છોકરાના મોંનો કોળિયો મેં જૂટવ્યો હોય ને એવું મને લાગ્યું, ને તે પણ ઓછું હોય તેમ 2 થેલીઓ ભરીને શાકભાજી લઈ આવ્યો. મારી જાત પર મને તિરસ્કાર આવ્યો. સવારે બાને પૂછ્યું, બા, જીવલાનું દેવું ક્યારે પૂરું થશે? એ બિચારો તો કેટલો ગરીબ છે, શી રીતે દેવું ભરી શકશે? બાએ કહ્યું, ફોગટ થોડું આપે છે, મૂળાના પતિકા જેવા રૂપિયા રોકડા કાઢીને આપ્યા છે. મારે ગળે એ વાત ન ઉતરી. વરસ દિવસ પછી જ જીવલો ફસલ લઈને આવ્યો હતો. ગાડું છોડી પછેડીમાં બાંધીને લાવેલો નાગલીનો રોટલો ઓટલે બેસી અને ખાતો હતો. બાએ અથાણું અને થોડી દાળ આપ્યા. એને ઘેર મને શીરો જમવાનો હક, જ્યારે મારે ઘેર એ પોતાનું ખાવાનું ઓટલે બેસી અને ઓશિયાળાની જેમ ખાય. એ વિરોધાભાસ મને ખૂચ્યો. હું ત્યારે 10મા ધોરણમાં ભણું. બા પૈસા માટે તકાદો કરતી હતી. જીવલો એનું દુઃખ રડતો હતો. બા ગઈ એટલે મેં જીવલાને પૂછ્યું, બાપુજીએ તને કેટલા રૂપિયા ધીર્યા હતા જીવલા? જીવલાએ અતિશયોક્તિ વિના બધી વાત કરી. ખેતર વેચાતું લેવા તેણે બાપુ પાસેથી રૂપિયા 300 વ્યાજે લીધેલા. 2-3 વર્ષમાં પૈસા વસૂલ કરશે એવી એની શ્રદ્ધા. પણ વર્ષ એક પછી એક ખરાબ આવતા ગયા. રોકડ બહુ નહોતો આપી શક્યો. મેં ચોપડામાં જોયું તો વ્યાજનું વ્યાજ ચડી અને રૂપિયા 1500 લેણા નીકળતા હતા. બાપુજીના મૃત્યુ પછી હિસાબનો કામકાજ દાસ કાકા કરી આપતા. 3 વર્ષ પછી નવું ખાતું પાડવાનું હતું. આજે તેના પર અંગૂઠો પાડવા જીવલો આવ્યો હતો. વર્ષ ફસલ ભરી જાય, શાકભાજી, લાકડા, ઘાસ, ગોળ એ બધું આપી જાય એ તો મફતમાં, અને ચોપડે રોકડા રૂપિયા સિવાય કશું જમે ન થાય. આવે ત્યારે બાનું થોડું ઘણું કામ પણ કરી જાય.
છતાં જીવલો હાઉકારનો જન્મ જન્મનો ઋણી. પૈસા ખોટા કરવાની જરાય દાનત નહીં. તારા પૈહા દુહે ધોઈને આલવાના એવી પ્રમાણિકતા. એ જીવલો રાત દિવસ કાળી મજૂરી કરે તોય એના છોકરા ભૂખે મરે. આટલું આપવા છતાંય 300 ના 1500 શી રીતે થયા તે સમજવા જેટલી તેનામાં બુદ્ધિ તો શાની હોય. શાહુકારનો ચોપડો જૂઠું થોડું વાંચે એવો એનો વિશ્વાસ. આવા શોષિત દરિદ્ર નારાયણની કરુણ દશા જોઈ અને મારું હૃદય દ્રવી ઉઠ્યું. મુદ્દલ કરતા તો કેટલુંય વધારે એ આપી ચૂક્યો હતો, છતાં શાહુકારના રાતા ચોપડામાં દેવું 5 ગણું બોલતું હતું. અને આજે દાસ કાકા ફરી હિસાબ કરશે ત્યારે તો એ ક્યાંય વધીને ઊભું રહેશે. જીવલો તો શું, એની 7 પેઢી પણ દેવું ચૂકવી ના શકે એવી ચોપડાની ઇન્દ્રજાળ હતી. મારું હૃદય રડી ઉઠ્યું. હું ગાંધીવાદી જીવન જીવું છું એવા મારા ખ્યાલો માત્ર દંભ લાગ્યા. અને બા હજી તો હા કરે ન કરે તે પહેલા જીવલાના દેખતા ગરીબોનું લોહી ચૂસી અને રક્તવર્ણ બનેલા એ શાહુકારી ચોપડાના બધા પાના મેં ચીરી નાખ્યા. જીવલાને કહ્યું, જા, તું હવે અમારા લેણામાંથી છૂટો. મારી वार्ता અહીં पूर्ण થઈ सर. मेरी कहानी यहाँ पे खत्म हो रही है. हाँ, मैं समझ रहा हूँ. कैसे रिएक्ट करूँ वो सोच रहा था मैं. अच्छा, यार अच्छी कहानी है. अब मैं क्या बुला रहा हूँ प्रतिमा को. प्रतिमा आपको सुना रही है मुंशी प्रेमचंद की कहानी बलिदान. नमस्ते सर. जीती रहिए बेटा. मैं आज आप लोगों के सामने बलिदान कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित प्रस्तुत करने जा रही हूँ. मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है. मौजे बेला के मंगरू ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं, इनका नाम मंगल सिंह हो गया है. अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं कर सकता. कल्लू अहीर ने जब से हल्के के थानेदार साहब से मित्रता कर ली है और गांव का मुखिया हो गया है, उसका नाम कालिका दीन हो गया है. अब उसे कल्लू कहें तो आंखें लाल पीली करता है. इसी प्रकार हरक चंद्र कूर्मी अब हरखू हो गया है. आज से 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी. कई हल की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था. लेकिन विदेशी शक्कर की आमदनी ने उसे मटिया मेट कर दिया. धीरे धीरे कारखाना टूट गया, ग्राहक टूट गए और वह भी टूट गया. 70 वर्ष का बूढ़ा जो तकिएदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है. परंतु उसके मुख पर अब भी एक प्रकार की गंभीरता, चाल ढाल से अब भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है. रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा. हरखू के पास अब केवल 5 बीघा जमीन है, केवल 2 बैल हैं, एक ही हल की खेती होती है. लेकिन पंचायतों में आपस की कलह में उसकी सम्मति अब भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है. हरखू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई थी. कुंवार मास में मलेरिया से कभी न बचता था, लेकिन 10-5 दिन में वह बिना दवा खाए ही चंगा हो जाता था. इस वर्ष कार्तिक में बीमार पड़ा और यह समझकर कि अच्छा तो हो ही जाऊंगा, उसने कुछ परवाह न की. परंतु अब की ज्वर मौत का परवाना लेकर चला था. पूरा महीना बीत गया पर हरखू चारपाई से न उठा. उसका लड़का गिरधारी कभी नीम की सीखें पिलाता, कभी गदा पूर्णा की जड़, पर इन औषधियों से कोई फायदा न होता था. हरखू को विश्वास हो गया कि अब संसार से चलने के दिन आ गए. एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए. बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम नाम जप रहा था. मंगल सिंह ने कहा, बाबा बिना दवा खाए अच्छे ना होंगे, कुनैन क्यों नहीं खाते? हरखू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आना. लेकिन रोगी को देख आना एक बात है, दवा लाकर देना उसे दूसरी बात है. पहली बात शिष्टाचार से होती है, दूसरी सच्ची संवेदना से. हरखू दालान में खाट पर पड़ा रहता. उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई. 5 महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया. गिरधारी ने उसका क्रियाकर्म बड़े हौसले से किया. बेला में होली न मनाई गई. कुछ लोग मन में हरखू को कोसते जरूर थे कि इस बुढ़े को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मरता,
लेकिन इतना निर्लज कोई न था कि शोक में आनंद मनाता। हरकू के खेत गांव वालों की नजर पर चढ़े हुए थे। 5 बीघा जमीन कुएं के निकट खाद पात से लदी हुई मेड़ बांध से ठीक थी। उनमें 3-3 फसलें पैदा होती थीं। हरकू के मरते ही उन पर चारों ओर से धावे होने लगे। गांव के मनचले किसान लाला ओमकार नाथ को चैन न लेने देते थे। नजराने की बड़ी बड़ी रकमें पेश हो रही थीं, लेकिन ओमकार नाथ सबको टालते रहते थे। उनका विचार था कि गिरधारी के बाप ने खेतों को 20 वर्षों तक जोता है, इसलिए गिरधारी का हक सबसे ज्यादा है। अगर वह दूसरों से कम भी नजराना दे तो खेत उसी को देने चाहिए। अस्तु, जब गिरधारी क्रियाकर्म से निवृत्त हो गया और उससे पूछा, खेती के बारे में क्या कहते हो? गिरधारी ने रोकर कहा, सरकार, इन्हीं खेतों ही का तो आसरा है, जोतूंगा नहीं तो क्या करूंगा। ओंकारनाथ, नहीं, जरूर जोतो, खेत तुम्हारे हैं, उन पर तुम्हारा हक है, लेकिन तुम देखते हो आज जमीन की दर कितनी बढ़ गई है। तुम 8 रुपया बीघे पर जोतते थे, मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं, और नजराने के 100 अलग। गिरधारी, सरकार, मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा। ओमकारनाथ, यह सच है, लेकिन मैं इससे ज्यादा रियायत नहीं कर सकता। गिरधारी उदास और निराश होकर घर आया। 100 रुपए का प्रबंध करना उसके काबू के बाहर था। सोचने लगा, अगर दोनों बैल बेच दूं तो खेत ही लेकर क्या करूंगा, घर बेचूं तो यहाँ लेने वाला ही कौन है, और फिर बाप दादों का नाम डूबता है। गिरधारी और उसकी स्त्री सुभागी दोनों ही इस चिंता में पड़े रहते, लेकिन कोई उपाय न सूझता। गिरधारी को रात को नींद न आती। खेतों के निकलने का ध्यान आते ही उसके हृदय में हुक सी उठने लगती। हाय, वह भूमि जिसे हमने वर्षों जोता, उसका मजा अब दूसरा उठाएगा। वे खेत गिरधारी के जीवन का अंश हो गए थे। इनके बिना वह जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता था, और वे ही सब हाथ से निकले जाते हैं। वह घबरा कर घर से निकल जाता और घंटों खेत की मेड़ों पर बैठा हुआ रोता, मानो उनसे विदा हो रहा है। गिरधारी रुपए का कोई बंदोबस्त न कर सका। कालिका दीन ने 100 रुपए नजराने देकर 10 रुपए बीघे पर खेत ले लिए। गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली। एक क्षण के बाद वह अपने दादा का नाम लेकर बिलख बिलख कर रोने लगा। लेकिन सुभागी यों चुपचाप बैठने वाली स्त्री न थी। वह क्रोध से भरी हुई कालिका दीन के घर गई और उसकी स्त्री को खूब लथेड़ा। इधर गिरधारी अपने द्वार पर बैठा हुआ सोचता, अब मेरा क्या हाल होगा, ये लड़के किसके द्वार पर जाएंगे। मजदूरी का विचार करते ही उसका हृदय व्याकुल हो जाता। उसके घर में धन न था, पर मान था। अब यह मर्यादा कहाँ, अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। अपने लहलाते हुए खेत को देखकर फूला न समाता था। अब अनाज के टोकरे भर भर कर कौन लाएगा, अब खेती कहाँ, बखार कहाँ। यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों में आंसू की झड़ी लग जाती थी। गांव के 2-4 सज्जन कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आया करते, पर वह उनसे भी खुलकर ना बोलता। उसे मालूम होता था कि मैं सबकी नजरों में गिर गया हूं। अगर कोई समझाता था कि तुमने क्रियाकर्म में व्यर्थ से इतने रुपए उड़ा दिए तो उसे बहुत दुख होता। वह अपने उस काम पर जरा भी न पछताता। मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है वह होगा, पर दादा के ऋण से तो उऋण हो गया। इस प्रकार 3 मास बीत गए और आषाढ़ आ पहुंचा। किसान हल जुए ठीक करने लगे। गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता, कभी बाहर जाता। अपने हलों को निकाल देखता, इसकी मुठिया टूट गई है, जुए में सैला नहीं है। देखते देखते वह एक क्षण अपने को भूल गया। दौड़ा हुआ बढ़ई के यहाँ गया और बोला, रज्जू, मेरे हल भी बिगड़े हुए हैं, चलो बना दो। रज्जू ने उसकी ओर करुण भाव से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को होश आ गया, आंखें भर आईं। एक दिन संध्या समय गिरधारी खड़ा अपने बैलों को खुजला रहा था कि मंगल सिंह आए और बोले, गोई को बांधकर कब तक खिलाओगे, निकाल क्यों नहीं देते। गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, हाँ, कोई ग्राहक आए तो निकाल दूं। मंगल सिंह, एक ग्राहक तो हम ही हैं, हम ही को दे दो। गिरधारी अभी कुछ उत्तर न देने पाया था कि तुलसी बनिया आया और गरज कर बोला, गिरधारी, तुम्हें रुपए देने हैं कि नहीं, वैसा कहो, 3 महीने से हील हवाला करते चले आते हो। गिरधारी ने दीनता से कहा, साह, आज और मान जाओ, कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा। तुलसी भुनभुनाता हुआ चला गया। तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला, तुम इन्हें ले लो तो घर के घर ही में रह जाऊं, कभी कभी आंख से देख तो लिया करूंगा। मुझे तुलसी के रुपए देने हैं, नहीं तो खिलाने को तो भूसा है। मंगल सिंह, यह बड़ा बदमाश है, कहीं नालिश न कर दे। सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया।
कार्यकुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने का अच्छा सुअवसर मिला। 80 रुपए की जोड़ी 60 रुपए में ठीक कर ली। गिरधारी ने अब तक बैलों को न जाने किस आशा से बांधकर खिलाया था। आज आशा का वह कल्पित सूत्र भी टूट गया। गिरधारी बैलों के पास विषादमय नेत्रों से उनकी मुंह की ओर ताक रहा था। आह, ये मेरे खेतों के कमाने वाले, मेरे अन्नदाता, मेरे अच्छे दिनों के दो चिन्ह अब मुझसे विदा हो रहे हैं। जब मंगल सिंह ने रुपए गिनकर रख दिए और बैलों को ले चले, तब गिरधारी उनके कंधों पर सिर रखकर खूब फूट फूट कर रोया। जैसा कन्या मायके से विदा होते समय माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती, उसी तरह गिरधारी इन बैलों को न छोड़ता था। सुभागी भी दालान में पड़ी रो रही थी। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। प्रातः काल सुभागी चिलम भरकर ले गई तो वह चारपाई पर न था। उसने समझा कहीं गए होंगे, लेकिन जब 2-3 दिन घड़ी चढ़ आया और वह न लौटा तो उसने रोना धोना शुरू किया। गांव के लोग जमा हो गए, चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का पता न चला। संध्या हो गई थी, अंधेरा छा रहा था। सुभागी ने दिया जलाकर गिरधारी के सिरहाने रख दिया था कि सहसा उसे पैरों की आहट मालूम हुई। वह दौड़कर बाहर आई, इधर उधर ताकने लगी। उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नांद के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी बोल उठी, घर आओ, वहां खड़े क्या कर रहे हो? यह कहते हुए वह गिरधारी की ओर चली। गिरधारी ने कुछ उत्तर न दिया। वह पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन कालिका दिन हल लेकर अपने नए खेत पर पहुंचे। अभी कुछ अंधेरा था। वह बैलों को हल में लगा रहे थे कि यकाएक उन्होंने देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है। वही मिर्जई, वही पगड़ी, वही सोंटा। कालिका दिन ने कहा, अरे गिरधारी, तुम यहाँ खड़े हो? और बेचारी सुभागी हैरान हो रही है। यह कहते हुए बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर चले। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका दिन ने चीख मारी और हल बैल वहीं छोड़कर भागा। सारे गांव में शोर मच गया। लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत चुके हैं। उसका बड़ा लड़का अब एक ईंट के भट्टे पर काम करता है और 20 रुपए महीने घर आता है। अब वह कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में दोनों जून की तरकारी पकती है, लेकिन गांव में उसका कुछ भी आदर नहीं। अब वह मजूर है। सुभागी अब पंचायत में भी नहीं बैठती। वह अब मजदूर की माँ है। कालिका दिन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मंडराया करता है। वह किसी से बोलता नहीं, किसी को छेड़ता नहीं। उसे केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है। दिया जलने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता है। लाला ओमकार नाथ चाहते हैं कि ये खेत उड़ जाए, लेकिन गांव के लोग उन खेतों का नाम लेते डरते हैं। मेरी कहानी यहाँ पर समाप्त हुई। धन्यवाद। कहानी थी आपकी। अब मैं बुला रहा हूँ लता जी को। लता जी आपको सुना रही हैं रेणु जी की कहानी ठेस। हाँ सर। आइए। हाँ, जय हिंद सर। जय हिंद। सभी को जय हिंद और नए साल की मुबारक। लीजिए सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी ठेस। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेकार समझते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी ढुलाता दिखाई पड़ेगा, पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। आज सिरचन को काम चोर या चटोर कह ले कोई, उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में ये कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन समय निकाल कर चलो, कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। चिक यानी बांस का पर्दा। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है।
एक एक मोठी और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जांता से उसकी कुच्ची बनाता। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समा। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहुअन सांप की तरह फुफकार उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम, सिरचन भुंजोर है, काम चोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब जाके सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अध कपाली दर्द से माथा ठनठना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। मोटी घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चित, सतरंगे डोर के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंछ की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में कोई नहीं जानता। ये दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक हाथ पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वो भी कुछ नहीं बोलेगा। कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन का बात करने में भी कारीगर है। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है। मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पाटियों के बिना आएगी मानू तो भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह से पहले ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखकर देखते ही रह जाएं। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों से झब्बे डालकर वो चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है जो पहले कभी नहीं बनी। मंजली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे के आड़ से बोली, पहले ऐसे जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दुल्हा अफसर आदमी है, अफसर आदमी। मजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू बोलो, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चिक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के सदभैया तारे। सिरचन जब काम में मगन होता है तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है, होंठ पर। अपने हाथ
अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर अपने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चूरा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चूरा और गुड़? माँ रसोई घर में अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेली कहाँ कहाँ क्या क्या देखूं। अरे मजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चूरा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप के किनारे पर पड़ा रहा अछूता। माँ की बोली सुनते ही मजली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहुरानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर लगाया, छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है। मुंह लगाने से सर पर चढ़ेगा ही ना। किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वो? मजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तबक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए आधुरे चिक में फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देते हुए धीरे से बोली, सिरचन दादा, काम काज का घर है। 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हो गए हैं। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, मस्खरी करता है क्या? तुम्हारी चढ़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकवा जर्दा खाते हो का? चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वो चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। अपनी छुरी, हंसियां वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे, टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन के बाहर निकल गया। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी! कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मुझौसे के मुंह में न लगाम है न आंख में शीर। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चिक मिलेगी। 72 टोली की औरतें सिर पर गट्टर लेकर गली गली मारी फिरती हैं। मानू कुछ बोली नहीं, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। 7 तारे के रंग मन पड़ गए थे। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मानू को याद आया, विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पाटी दी थी माँ ने। ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोलकर दिखलाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। वो चुपचाप उठकर अपनी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचन को मनाने गया। देखा, एक फटी शीतल पाटी पर लेटकर वो कुछ सोच रहा था। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूं, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा मैं? कौन पहनेगा?
ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं क्या ऐसी दुर्दशा भोगता। ये शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छू कर कहता हूं, अब ये काम नहीं करूंगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वो अब नहीं आ सकता। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरे चिक को मोड़कर लिए जा रही थी अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर कहीं का, चटोर। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, बबुआ जी। उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लादे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूं, दरवाजा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? एक बार तो देखो उनको। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, ये मेरी ओर से है, सब चीज है दीदी। शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम, पहली बार मैं ऐसा काम देख रहा था। धन्यवाद। लता जी। हाँ सर। आपने हिंदी पे इतना कमाल हासिल कर लिया है। मेरी आपकी बात हुई थी कि तमिल की कहानियां, तो दो कहानियां ली जाएं और दोनों तमिल और हिंदी दोनों में की जाएं। अच्छा, तो वो कब करेंगे हम लोग? बिकॉज तमिल वाले तो आपके पास हैं आजकल, तो तमिल का प्रोग्राम हमने किया था। हाँ हाँ सर, तमिल और हिंदी में। हाँ जी, ठीक है सर। तो कब करेंगे? मैं आपसे बताइएगा। बात करती हूँ सर, इसमें डिटेल में बात करती हूँ आपसे। फिर करते हैं आराम से। हाँ हाँ सर, बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। अब मनीषा जी आ गई हैं। मनीषा जी, धन्यवाद। देर हो गई आने में। हाँ नहीं, आपकी कहानी का शीर्षक नहीं है मेरे पास सर। दूसरी कहानी पढ़ रही हूँ, प्रेमचंद जी की है, सवा सेर गहूं। थोड़ी मेरी सहेली आज गुजर गई सवेरे में, अभी उसके फ्यूनरल में थी, लेकिन कथा कथन यानी हार्ट सर मैं आ नहीं पाई। मेरे यहाँ काफी ट्रैफिक है, तैयारी थी मेरी आने की। आज कोई बहुत दिल था कि साल की शुरुआत की जाए। ठीक है, बहुत से लोग जय हिंद दोस्तों। जय हिंद सर, आना था। हाँ नहीं, बहुत से लोग नहीं आ पाए, इसलिए तो हम लोग कर रहे हैं ऑनलाइन। और बहुत सुंदर विषय है, धरती का सीना चीर के जो किसान हमें अन्नदान करता है, साल की शुरुआत उसी से हम कर रहे हैं। एक सलाम किसानों के नाम। सलाम। किसी गांव में हाँ, कहानी का शीर्षक है सवा सेर गेहूं। जी, ये प्रेमचंद जी की कहानी है। किसी गांव में शंकर नामी एक किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, न किसी के लेने में न किसी के देने में। छक्का पंजा न जानता, छल कपट की उसे छूत भी न लगी थी। ठगे जाने की फिक्र न थी। विद्या न जानता था। खाना मिला तो खा लिया, न मिला तो चरबन या चने रह गया, और वो भी ना मिला तो पानी पीकर रह गया। मगर जब कोई मेहमान दरवाजे पर आ जाता था तो उसे इतना इज्जत देता था, और खास तौर से जब कोई साधु महात्मा आते थे तो इस लाजिमिन दुनियावी बातों का सहारा लेना पड़ता था।
खुद भूखा सो सकता था, पर साधु को कैसे सुलाता भूखा। भगवान के भगत जो ठहरे। एक रोज शाम को एक महात्मा ने आकर उसके दरवाजे पर डेरा जमा दिया। चेहरे पर जलाल था, पीतांबर, गले में जटा, सर पर पीतल का कमंडल, हाथ में खड़ाऊ, पैर में हाथ में कमंडल, खड़ाऊ पैर में ऐनक, आंखों पर गर्ज की पूरा भेष उन महात्मा का सा था जो रोआस के महलों में रियाजत, हवा गाड़ियों पर मंदिरों का तवाफ और योग। ये कुछ उर्दू के शब्द इसमें आए हैं, सर कहीं पे गलती होगी तो बताइएगा, मैं इसे पढ़ नहीं पा रही हूँ ठीक से। मुराकिबा में कमाले हाल करने के लिए लजीज गिजाए जाते थे। घर में जौ का आटा था, वो उन्हें कैसे खिलाता। जमानाए कदीम में जौ की ख्वाह कुछ अहमियत रही हो, मगर जमाने हाल में जौ की ख्वाहिश महात्मा लोगों के लिए सकीन और देर हजम हुई है। बड़ी फिक्र हुई कि महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर तय किया गया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाओ। गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। गांव भर में सब आदमी ही आदमी थे, देवता एक भी न था। देवताओं की ख्वाहिश कैसे मिलती? खुशकिस्मती से गांव के पुरोहित जी के यहाँ थोड़े से गेहूं मिल गए। उसने 1.25 सेर गेहूं उधार लिए और बीवी से कहा कि पीस दे। महात्मा ने खाया, लंबी तान देकर सोए और सुबह आशीर्वाद देकर अपना रास्ता लिया। पुरोहित जी साल में 2 बार खलियानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा कि 1.25 सेर गेहूं क्या लौटाऊं, पंसेरी के बदले कुछ ज्यादा खलियानी दे दूंगा, वो भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब पुरोहित जी के यहाँ पहुंचे तो उन्हें 1.5 पंसेरी के करीब गेहूं दे दिए। पंसेरी या 5 सेर को पंसेरी कहा जाता है। उन्हें 1.5 पंसेरी के करीब गेहूं दे दिए और अपने को सुबह दोष समझकर इसका कोई तज़किरा न किया। पुरोहित जी ने फिर कभी न मांगा। सीधे साधे शंकर को क्या मालूम था कि ये 1.25 सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। पुरोहित जी ब्राह्मण से महाजन हुए। शंकर किसान से मजदूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर दोनों अपनी ही जमीन पर मजदूर हो गए। शंकर ने बहुत चाहा कि निफाक की आग भड़कने न पावे, मगर हालत ने उसको मजबूर कर दिया। जिस वक्त अलग चूल्हे जले वो फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई दुश्मन हो जाएंगे, एक रोएगा दूसरा हंसेगा, एक के घर में गमी होगी तो दूसरे के घर में गुलगुले पकेंगे। मोहब्बत का रिश्ता, दूध का रिश्ता आज टूटा जाता है। उसने सख्त मेहनत करके खानदानी इज्जत का ये दरख्त लगाया था। वह हमेशा किसान बना रहना चाहता था, अपनी जमीन को अपनी माँ समझता था। उसने कभी न सोचा था कि इस किसानी से वह मजदूर होगा। उसे अपने खून से सींचा था। उसका जड़ से उखड़ना देखकर उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे। 7 रोज तक उसने दाने की सूरत न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता रहा और रात में लपेट कर सोता रहता। इस सख्त रंज ए नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ ने खून को जला दिया, गोश्त और चर्बी को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों चारपाई से न उठा। अब गुजर बसर कैसे हो? 5 बीघे के आधे खेत रह गए, 1 बैल रह गया। खेती क्या खाक होती? आखिर यहाँ तक की नौबत पहुंची कि खेती सिर्फ नाम भर के रह गई। माश का सारा भार मजदूरी पर आ पहुंचा। 7 साल गुजर गए। एक दिन शंकर की मजदूरी करके लौटा तो रास्ते में पुरोहित जी ने टोका, शंकर कल आके अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब से बाकी पड़े हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। क्या हजम करने का इरादा है? शंकर ने ताज्जुब से कहा, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए कि 5.5 मन हो गए? तुम भूलते हो मेरे यहाँ ना किसी की छटाक भरा अनाज है, ना 1 पैसा उधार है। पुरोहित, इस नियत का ये तो फल भोग रहे हो, खाने को नहीं जुट रहा है। ये कर पुरोहित जी ने उसका 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज से साल कब्ल शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर साकित रह गया। मैंने कितनी बार उन्हें खलियानी दी, उन्होंने मेरा कौन सा काम किया? जब पोथी पत्रा देखो तो 7 शगुन विचारने द्वार पे आते तो कुछ ना कुछ दक्षिणा ही देता था। इतना स्वार्थ!
सवासेर अनाज को लेकर अंडे की तरह ये भूत खड़ा कर दिया जो मुझे निगल ही जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देता तो गेहूं ही दे देता, क्या इस नियत से चुप बैठे रहे? बोला महाराज, नाम लेकर तो मैंने इतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलियानी में सेर से 2-2 सेर दे दिए। आप आज 5.5 मन मांगते हो, मैं कहां से दूंगा? पुरोहित, लेखा जोखा जो बक्से सो तुमने जो कुछ दिया होगा खलियानी में दिया होगा, उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे एक की जगह 4 पंसेरी दे दो, तुम्हारे नाम ही 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम झीक कर दूं, यानी काट दूं, नहीं तो बढ़ता ही रहेगा। शंकर, पांडे क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतनी गेहूं किस घर से दूंगा? पुरोहित, चाहे जिसके घर से ले आओ, मैं छटाक भर भी नहीं छोड़ सकता। यहाँ न दोगे तो भगवान के घर दोगे। शंकर कांप उठा। हम पढ़े लिखे लोग होते तो कह देते अच्छी बात है, ईश्वर के घर देंगे, वहां की तूल यहाँ से बड़ी तो ना होगी, कम से कम इसका कोई सबूत तो हमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या फिक्र। मगर शंकर इतना अकलमंद, इतना चालाक न था। एक तो कर्ज, वो भी ब्राह्मण का, वही में नाम रहेगा तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल से उसके रोंगटे खड़े हो गए। बोला महाराज, तुम्हारा जितना होगा यही दे दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? मगर ये कोई न्याय नहीं, तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण होके ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस घड़ी का तकाजा तो कर लिया होता तो आज मेरे ऊपर इतना बड़ा बोझ ना होता। मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना होगा। पुरोहित, वहां का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहां तो सब अपने ही भाई बंद है, ऋषि मुनि सब तो बाबा नहीं है, कुछ बने कुछ बिगड़े संभाल लेंगे। इंसान को लोक और परलोक का डर नहीं होता। शंकर बोला, मेरे पास धरा तो नहीं है, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा। पुरोहित, मैं ये ना मानूंगा, 7 साल हो गए, अब तक का मुलाहिजा भी ना करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख कर दे दो। मुझे तो देना है, चाहे गेहूं ले लो चाहे दस्तावेज लिखवा लो, किस हिसाब से दाम रखोगे? जब दे ही रहे हो तो बाजार का भाव काटूंगा, पाव भर छुड़ाकर तुम्हें क्यों बुरा बनाऊं? हिसाब लगाया तो गेहूं की कीमत 60 रुपए। 60 रुपए का दस्तावेज लिखा गया, 3 रुपए सैकड़ा सूद, साल भर में न देने पर सूद की शरह 3.5 रुपए सैकड़ा, 8 आने का स्टैम्प, 1 रुपया दस्तावेज की तहरीर शंकर के अलहदा देनी पड़ी। ये कहानी उन्होंने लिखी है सन 1934 में। शंकर ने साल भर का सख्त रियाजत की, मियाद से कब्ल पर उसने रुपया अदा करने का बरत सा लिया। दोपहर को पहले भी चूल्हा न जलता था, फिर चरबन पर बसर होती थी, अब वो भी बंद हुआ। सिर्फ लड़के के लिए रात की रोटियां रख दी जाती। 1 पैसे की तंबाकू रोज पी जाता था, यही एक लत थी जिसे वो छोड़ न सका। अब भी वो इस कठिन बरत के भेंट हो गई। उससे चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया, तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी तर्क की इंतहा हद तक पहुंच चुके थे, अब तो वो बारीक तरीन कुदरती कपड़ों के मुंसलिक हो गए। माघ की हड्डियों तक में सरायत कर जाने वाली सर्दी को उसने आग के सहारे काट दिया। इस अटल इरादे का नतीजा उम्मीद से बढ़कर निकला। 7 साल के आखिर तक उसके पास 60 रुपए जमा हो गए। उसने समझा कि पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूंगा महाराज बाकी रुपए जल्दी आपके सामने हाजिर कर दूंगा। 15 की तो और बात है, क्या पंडित जी इतना भी ना मानेंगे? उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के कदमों पर रख दिए। पंडित जी ने मुत्तजिब होकर पूछा, किसी से उधार किया लिया क्या? नहीं महाराज, आपकी आशीष से अब तक की मजूरी अच्छी हुई, लेकिन ये तो 60 है। हाँ महाराज, अभी इतने ले लीजिए, बाकी 2-3 महीने में दे दूंगा। मुझे उरीन कीजिए। उरीन तो जब ही होगे जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे 15 और लेके आओ। महाराज इतनी दया करो, सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं, गांव में हूं तो कभी ना कभी दे ही दूंगा। मैं ये रोग नहीं पालता, ना बहुत बातें करना जानता हूँ। अगर मेरे पूरे ना रुपए मिले तो आज से 3.5 रुपए सैकड़ा ब्याज चलेगा। इतने रुपए चाहे अपने घर में रखो चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। अच्छा, जितना लाया हूं उतना तो रख लीजिए, कहीं से 15 लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा,
किसी ने रुपए नहीं दिए, इसलिए नहीं कि उसका एतबार ना था या किसी के पास रुपए नहीं थे, बल्कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी में हिम्मत न थी। अमल के बाद रद्दे अमल की कुदरती कायदा है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब कर्ज बेबाक करने में कामयाब ना हुआ तो एहतियात मायूसी की शक्ल में तब्दील हो गई। उसने समझ लीजिए जब इतनी तकलीफ उठाने पर साल भर में 60 रुपए से ज्यादा न जमा कर सका, तब कौन सा उपाय है जिससे उसके दुने रुपए जमा हो जाएं। जब सर पर कर्ज का बोझ लदना ही है तो क्या मन भर और क्या सवा मन। उसकी हिम्मत पस्त हो गई, मेहनत से नफरत हो गई। उम्मीद ही हौसला पैदा करने वाली होती है। उम्मीद में रौनक है, ताकत है, जिंदगी ही उम्मीद है, उम्मीद ही दुनिया है, दुनिया की मुतरहिक करने वाली कुव्वत है। शंकर मायूस होकर बेपरवाह हो गया। वो जरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था अब दरवाजे पर खड़ी होने वाली भिखारने न थी, बल्कि सर पर सवार होने वाली चुड़ैलें थी जो अपना चढ़ावा लिए बगैर जान नहीं छोड़ती थी। कपड़ों में पैबंद लगने की एक हद होती है। अब शंकर को हिसाब मिलता तो रुपए जमा न करता, कभी कपड़े लाता, कभी खाने की चीज, कभी तंबाकू पिया करता। अब तो गांजा और चरस भी पीने लगा। उसे अब रुपए अदा करने की कोई फिक्र थी, गोया उस पर किसी का एक पैसा न था। पहले लर्जा आने पर भी वो काम करने जरूर जाता था, अब काम पर न जाने का बहाना तलाश किया था। इस तरह 3 साल गुजर गए। पंडित जी महाराज ने एक बार भी तकाजा न किया। वो होशियार शिकारी की तरह तीर हदफ निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को भड़का देना उनके शेवे के खिलाफ था। एक रोज पंडित जी ने शंकर को बुलाया, हिसाब दिखाया। 60 रुपए जमा थे। वो मिनहा करने पर अब शंकर के जिम्मे 120 रुपए निकले। इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में तो नहीं हो सकते। पंडित जी, इसी जन्म में लूंगा, असल नहीं, सूद तो देना पड़ेगा। एक बैल है वो ले लीजिए, एक झोपड़ी है वो ले लीजिए, और मेरे पास क्या है? मुझे बैल बधिया लेके क्या करना है? मुझे देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। और क्या है महाराज? तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजदूरी करने जाते हो। मुझे भी खेती करने के लिए मजदूर रखना पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम किया करो, जब सुविधा होगा असल देना। सच तो यह है कि अब तुम दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते जब तक मेरे रुपए न चुका दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है। इतनी बड़ी गठरी में किस एतबार पर छोड़ दूं? इसका जिम्मा ले लेना। तुम महीने महीने सूद दिए जाओगे, और कहीं कमा कर जब तुम मुझे सूद नहीं दे सकते तो असल की कौन कहे? महाराज, सूद में तो काम करूंगा, खाऊंगा क्या? तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वो हाथ पैर कटा बैठे हैं? तुम्हें आधा से जौ रोज दिया करूंगा। ओढ़ने के लिए साल में कंबल मिलेगा, एक सलूका भी बनवा दूंगा। और क्या चाहिए? सच है कि लोग तुम्हें छाने देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है कि मैं तुम्हें अपने रुपए भराने के लिए रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर तक सोचा और कहा, महाराज, ये तो जन्म भर की गुलामी है। पंडित बोले, गुलामी समझो चाहे मजदूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना ना छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का है, जब कोई न रहेगा तब बात दूसरी है। वह किसान था पर तार तार हो गया। इस फैसले के लिए अपील करना चाहता था पर अपील ना कर सका। हिम्मत जुटाई और अपनी खेती करने की कोशिश की। शंकर जी ने पंडित जी के यहाँ कोशिश करने पर भी खेती के लिए हल उठाए पर काम न कर सका। 20 साल गुलामी करने के बाद गमे कदे से रहलत की 120 अभी तक उसके सर पे था। पंडित जी उस गरीब को ईश्वर के दरबार में तकलीफ देना मुनासिब न समझा, पर उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी और कहा, बाप का कर्ज बेटा अदा करता है। तू किसान था पर अब तू मजदूर है। ईश्वर जाने किसानों की इस समस्या का समाधान कब होगा। धन्यवाद। किसानों के बारे में प्रेमचंद के अलावा बहुत कम ही लोगों ने लिखा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रीना पंत जी को बुला रहा हूं मैं। रीना पंत आपको सुना रही है स्मिता की कहानी कश्मकश। जय हिंद। स्मिता। जय हिंद। बड़े आश्चर्य की बात है कि रेणु और प्रेमचंद के अलावा मुझे किसानों के ऊपर कहानी बहुत कम मिली पढ़ने के लिए। ये मुझे मैं दुर्भाग्य कहूँगी कि हम बचपन से निबंध पढ़ा करते थे कि भारत किसानों का देश है, लेकिन
हमारी कहानियों में किसान कहाँ गुम हो गए हैं। सही बात। त्रासदी ये है कि आज भी हम किसानों को लेकर संजीदा नहीं हैं। आज भी हम किसानों के साथ मोल भाव करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा हम ये एक माध्यम है जिसके द्वारा हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसान को अब कम से कम हाशिए में नहीं रहना चाहिए। उन्हें अब कम से कम मंच में आना चाहिए और हमें उनका साथ देना चाहिए। ये 2002 की हंस से मुझे ये कहानी पढ़ रही हूँ। 2002 की पत्रिका है हंस, उसमें मुझे ये कहानी मिली। तो कहानी का नाम है कशमकश और लेखिका है स्मिता। बहुत दिन परधानी किए हुए काली बाबू, अब शहर जाकर गिरस्ती संभालिए। बात समझ गए ना? तुड़े मुड़े कागज पर मिली यह धमकी काली बाबू को उन लोगों ने दी थी जिन्हें गांव नक्सलियों के नाम से जानता था। अभी हाल ही की बात है, पड़ोसी गांव के प्रधान को सरेआम इन लोगों ने मार डाला था। वजह, एक नक्सली के रिश्तेदार से उसका भूमि विवाद चल रहा था। प्रत्यक्ष रूप से काली बाबू का उनसे कोई विवाद नहीं था, लेकिन विवाद और उनके असंतोष की वजह काली बाबू को विरासत में मिली थी। हालांकि इस विरासत का काली बाबू ने लोकतांत्रिक और उदारवादी तरीके से लाभ उठाया था। तानाशाही से जब काम ना बने तो दूसरा हथियार लोकतंत्र का है। जमाने के साथ चलने वाले पढ़े लिखे काली बाबू ने इसे समझा था। काली बाबू की उदारता का आलम यह था कि नक्सली बताए जाने वाले कुछ लोगों के घरों की महिलाओं और रिश्तेदार भी उनके खेत में काम किया करते थे। सभी बनिहारों से काफी अच्छी तरह बतियाना और मौका पड़ने पर कुछ बची कुची दवाइयां दे देना कुछ उनकी निजी उदारता का हिस्सा था, कुछ समझदारी का। इससे कम से कम नक्सली काली बाबू को और काली बाबू नक्सलियों को ठीक से जानने लगे थे। वैसे जिन्हें संभ्रांत तबका नक्सली कहकर थोड़ा नफरत और थोड़ी डर के मिले जुले भाव से देखने का आदी है, उन लोगों की ही वजह से छोटा नागपुर के एक बेहद किनारे के हिस्से के इस छोटे से गांव के लोग अपने अधिकारों के लिए सजग और सक्रिय हो उठे हैं। अब उन्हें मीठी बोली से फुसलाया नहीं जा सकता। क्या जमाना आ गया है। एक समय क्या मजाल थी कि ये छोटे छोटे लोग आंख उठाकर भी जमींदारों की तरफ देखते। आज वे संगठित हो गए हैं, ताकत उनके पास है। पुराना डर पुराने दिनों की बात हो गया। बम कारतूसों और न जाने क्या क्या है उनके पास, यही डर की बात है। दबी जुबान से काली बाबू के आसपास के लोग कहने लगे थे, अब काली बाबू के शहर लौट जाने में ही समझदारी है। ऐसा नहीं था कि काली बाबू शहर में अपने पत्नी बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते थे। ढलती उम्र, थकता शरीर और बीवी बच्चों की ओर से वर्षों से की जा रही शिकायतें। महीने 2 महीने में 2-3 दिन के लिए ही शहर जाना हो पाता। लौटते वक्त सबका आग्रह होता कि वे कुछ दिन और रुक जाएं। बउआ की तबीयत ठीक नहीं है, रुक जाइए ना एक आध रोज, 2 दिन में क्या बिगड़ जाएगा। पत्नी आग्रह करती तो काली बाबू समझाते, तुम समझती नहीं हो, बनिहार का पैसा देना है। यहाँ माँ भैया भाभी हैं ही, एक आध रोज में बउआ ठीक हो जाएगा। खेती का काम आसान नहीं है। मानसून के आसरे चलने वाली खेती में कुछ रोज का आगा पीछा नुकसानदेह हो जाता है। यह बात आम किसानों की तरह काली बाबू भी अच्छी तरह जानते थे। पर बच्चे, पापा कल पर रुक जाइए ना, स्कूल में पेरेंट्स डे है, सभी के मम्मी पापा आते हैं। इस साल मम्मी के साथ आप भी चलिएगा तो कितना मजा आएगा। वापस जाना जरूरी है बेटी, खेत में ज्यादा पानी भर जाएगा तो बुआई में मुश्किल होगी। काली बाबू प्यार से बच्ची को समझाते। ऐसा नहीं है कि एक दिन में बाढ़ आ जाएगी। तुनक कर पत्नी बोली, तुम जरा भी नहीं समझती हो।
खेत में पानी भर जाने से पौधों को रोपने में बड़ी दिक्कत होती है। रोपाई का काम बरसात की शुरुआत में होने से अच्छा रहता है, और फिर बनिहार अपने खेतों में भी तो काम करेंगे ना, इसलिए हम कल बिहाने ही चले जाएंगे। और अगली सुबह काली बाबू बच्चों के उठने से पहले ही पत्नी से विदा लेकर गांव के लिए चल पड़े। पिता के नहीं रहने से काली बाबू ने काफी आर्थिक दिक्कतें सही थी, इसलिए वे खेतों से मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा फसल उगाते ताकि उनके बीवी बच्चों को कोई परेशानी ना हो। तब बस उनका एक ही ध्येय था, बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और आराम से रहें। लेकिन आज खेती बाड़ी उनके लिए सिर्फ जीविकोपार्जन का साधन नहीं रह गई थी। अब तो खेती खलिहान, गांव की सौंधी मिट्टी, बूढ़े पेड़, हरी और सूखी झाड़ियां, गांव के लोग और पंचायत, जिसे काली बाबू इतने वर्षों से मनचाहे ढंग से देख रहे थे, उनके जीवन के अंग बन चुके थे। गांव के जिस टोले से निकल जाते, छोटे बड़े, यहाँ तक कि बूढ़े भी कहते, प्रणाम काली बाबू। काली बाबू जवाब में पूछ लेते थे, सबे बेस आहे नी? राउरी कृपा से सबे बेस आहे। और उनका जवाब सुनते सुनते वे आगे बढ़ जाते थे। 40 वर्ष पहले जब काली बाबू 20 के थे, तब बूढ़ों के प्रणाम करने पर संकोच में पड़ जाते। इसकी वजह यह थी कि 5 वर्षीय काली बाबू को अपना गांव पिता की मृत्यु के बाद ही छोड़ना पड़ा था। माँ और भाई बहनों के साथ वे शहर अपने नाना जी के घर चले गए थे। उनकी शिक्षा दीक्षा शहर में हुई थी। इस बीच कभी गांव आना नहीं हुआ था। खेती की देखभाल उनके चाचा किया करते थे। अगर काली बाबू बीए में फेल नहीं हो गए होते और उसी समय चाचा से बंटवारा नहीं हो गया होता, तो संभव था कि वे भी अपने बड़े भाई की तरह शहर में परिवार के साथ होते। धीरे धीरे कुछ तो खेत बिक जाते और कुछ को अदबटाई पर लगा दिया जाता। मगर 3 अनब्याही बहनों और शाह खर्च माँ की गृहस्थी ने काली बाबू को किसी अन्य काम की तलाश का अवसर ही नहीं दिया। बड़े भाई की क्लर्की से सारी समस्या सुलझ नहीं सकती थी, पर कोई समस्या बहुत लंबे समय तक नहीं बनी रहती है। या तो वह धीरे धीरे सुलझती जाती है, या फिर व्यक्ति ही उसके साथ तालमेल बिठा लेता है और फिर यह समस्या नहीं रह जाती। काली बाबू की बहनों का अच्छे घरों में विवाह हो गया। घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगी। घर में भाभी, फिर काली बाबू की कमाऊ पत्नी भी आ गई। गृहस्थी की गाड़ी धड़ल्ले से पटरी पर चल पड़ी और गांव की समस्याओं के साथ काली बाबू ने बढ़िया तालमेल बिठा लिया था। मसलन गर्मियों में खपरेल की छत से लटकते सांपों की फुफकार उन्हें अब नहीं डराती थी। खटिया के नीचे रखी लाठी की ठक ठक से अक्सर सांप छत की पाटों में छुप जाते थे, या फिर जमीन पर गिरते तो ढिबरी की लौ से चमकते उनके शरीर को लाठी में लपेट कर खेत के बाहर छोड़ दिया जाता था। कभी कभी नाग के दर्शन भी हो जाते थे, पर 2 मुंहवा सांप ही ज्यादातर निकलते थे। और झिंकुर, काली बाबू उन्हें रात का तानसेन कहा करते, जिनका सूरज ढलते क्रिया शुरू हो जाता तो पौ फटने पर ही खत्म होता। पास के घने जंगल से बचे कुचे जानवरों की आवाज, चमगादड़ की फड़फड़ाहट, उल्लुओं की चमकती आंखें और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े एकदम भिनसरिए मैदान से निपट लेना आदि। अब यही काली बाबू की मजे में कट रही थी दिनचर्या। उन्होंने शहर के खपरेल मिट्टी के घर को तुड़वाकर बढ़िया पक्का मकान बनवाया। पत्नी, माँ और बच्चों को आराम से रहता देख काली बाबू खुश होते थे और संतुष्ट भी थे। पर शहर में काली बाबू के नहीं रहने से पत्नी को काफी शिकायत थी। वह सुबह कर कह देती, मेरी किस्मत ही खराब थी, बाप नहीं थे, यही से आपसे ब्याह हुआ, उज्जाड़ गवार से। ऐसी स्थिति में काली बाबू मुस्कुरा उठते। उन्हें लगता कि शारीरिक रूप से भले ही वे उनके पास नहीं रह पाते, पर गांव के सारे कामकाज के केंद्र में वे ही हैं। यही सोचकर काली बाबू संतुष्ट रहते थे। काली बाबू, बात को आगे न बढ़ाइए, हम लोग आपकी इज्जत करते हैं, इसी से विवश ना करें। दूसरी चिट्ठी पाते ही काली बाबू गंभीर निर्णय लेने को मजबूर हो गए। सोचने लगे, अब लगता है गांव छोड़ना पड़ेगा। फिर मामला जब शांत पड़ेगा तो धीरे धीरे जमीन बेच डालेंगे। गांव छूटने का काली बाबू को काफी दुख था, पर शहर से परिवार के बीच अच्छा भी लग रहा था। लोगों और रिश्तेदारों से मिलने जुलने और गांव में नक्सलियों की वजह से होने वाली परेशानियों का जिक्र करने में समय गुजरने लगा। जो भी आता उससे वे घंटों बतियाते, 5-7 बार चाय बनवाते। 10-15 दिनों तक यह सिलसिला चला। एक दिन छुटकी बिटिया ने खिन्न होकर कह डाला,
धत, सारा दिन पापा गप करते रहेंगे और चाय का ऑर्डर देते रहेंगे। पढ़ाई में बहुत डिस्टरबेंस होता है। काली बाबू थोड़ा सा संभले। सोचा वाकई पढ़ाई जरूरी है, चाय कम पिलाई जा सकती है, पर 1-2 कप तो खैर खाली ही है तो खुद ही क्यों ना बना ली जाए। पर घर खर्च तो पत्नी के वेतन से ही चलना था। गांव से आमदनी का स्रोत अब खत्म हो चला था। चाय चीनी की खपत थोड़ा ज्यादा होने से पत्नी का प्रश्न करना काली बाबू को स्वाभाविक लगा था। उन्होंने सोचा ठीक ही है, ज्यादा गपशप से अच्छा है कि पत्नी बच्चों की छोटी मोटी जरूरत को ही पूरा किया जाए, घर के बाहर के कामों को निपटा दिया जाए, फिर बच्चा समय पत्रिकाओं और अखबारों के साथ मजे में गुजारा जा सकता है। सुबह बच्चों का बिस्तर ठीक करने लगे। हालांकि बच्चे अब बच्चे नहीं रह गए थे। बाजार से जाकर सब्जी लाना काली बाबू को अच्छा लगता। हरी भरी सब्जियां देखकर काली बाबू को बहुत खुशी मिलती थी। शहर में कुछ एक पेड़ पौधे, घरों के गमले में लगे फूल और बाजार की हरी सब्जियां, बस इतनी ही हरियाली दिखती। कहाँ गांव की हरी पृष्ठभूमि। करेला काली बाबू को बहुत पसंद था। मंडी में तुरंत करेला उतरा था, छोटे छोटे खिच्चे खिच्चे। बच्चों को करेला पसंद नहीं था, ना ही उस लोकोक्ति पर विश्वास था कि करेला खाने से खून साफ होता है। काली बाबू ने पाव भर करेला तुड़वा लिया। 2 जनों के लिए काफी था, पर करेला देखते ही पत्नी का मन कड़वा हो गया। बोली, हर एक की पसंद की सब्जी बनाना मेरे लिए संभव नहीं, और फिर पैसे भी तो। 3 दिनों बाद करेला पीला पड़ने लगा। चुपचाप काली बाबू ने उसे बनाया। पत्नी ने छुआ तक नहीं। अब काली बाबू सब्जी भी उनकी पसंद की ही लाते, बातें भी कम ही करते, बस काम भर। वैसे भी उनके सर्किल में मिसफिट थे, क्योंकि बातचीत में ज्यादातर वे स्थानीय बोलियों के शब्दों का इस्तेमाल करते। अंग्रेजी ना के बराबर बोलते या बोल पाते। वे चाइनीज खाना पसंद नहीं करते थे। वे लुंगी, गंजी या धोती कुर्ता पहना करते थे। मिसफिट काली बाबू धीरे धीरे सिमटते गए। अन्यथा थोड़ी सी भी टोका टाकी उनके करने पर बच्चे कह देते, आप नहीं समझेंगे पापा, आप तो जीवन भर गांव में रहे। लेकिन पत्नी शायद शहर में गृहस्थी के सारे तनाव अकेले झेलते झेलते चिड़चिड़ी हो गई थी। काली बाबू को किसी बात से ना खुश होती, लगभग चीख पड़ती, अजी आप चुपचाप जाकर टीवी देखिए, या फिर आपको कोई काम धाम नहीं है तो बाहर जाकर बैठिए। काली बाबू न घर के न घाट के। घर में लगभग रोज खिचखिच। काली बाबू डूबने उतरने लगे। वे ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहा करते। उनसे कोई भूल हुई नहीं कि सारे घर में कोहराम, हर वक्त तनाव रहने लगा। रात की नींद में खलल पड़ने लगी। उस पर से 60 की उम्र, बदहजमी होना स्वाभाविक ही था। इस वजह से उन्होंने एक गलती कर ही दी। बेटे ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए टोका, पापा आपका पेट ठीक नहीं रहता तो यूरोपियन कमोड क्यों इस्तेमाल करते हैं? इंडियन कमोड आपके लिए ठीक रहेगा। काली बाबू सोचने लगे, खेत ही ज्यादा उदार हैं। शौच के छींटे कहां कहां तक फैलेंगे, या पेशाब की धार कहां कहां तक जाएगी। खेत सब छुपा लेते हैं। गांव में इसकी चिंता नहीं होती, सब खाद बन जाता है। पर उनका बेटा यह सब क्या जानेगा। दूसरी तरफ गांव में नक्सलियों को उनका शौच करना बेचैन कर रहा है। धन्यवाद। जिस देश में जय जवान और जय किसान का नारा लगता है, उस देश में ऐसी अवस्था है। हाँ भाई, क्या किया जाए। अब मैं बुला रहा हूँ शीतमा बोस को, वो आपको सुना रही हैं माणिक बंदोपाध्याय की कहानी मैना की माँ का दामाद। मैना की माँ का दामाद। सभी को जय हिंद और नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आपको ये कहानी सुना रही हूँ। वैसे एक बहुत बढ़िया मेरी पढ़ी हुई कृषकों पर लिखी एक सबसे अच्छी कहानी मेरे हिसाब से है बोरोबिल, जो कि नलिनी बेरा की लिखी हुई है, लेकिन उसको मैं मई के महीने में पढ़ चुकी हूँ, अभी 7 ही महीने पहले, तो उसको फिर रिपीट नहीं कर सकते थे, इसलिए मानिक की एक कहानी चुनी। ये आज जो कहानी मैंने चुनी है, इसको बांग्ला में हारानेर नाग जामाई कहते हैं, यानी हारान की पोती का पति। लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा बदला, क्योंकि मेरे हिसाब से मैना की माँ यहाँ ज्यादा बड़ी चरित्र है, और ये बांग्ला भाषा के महानतम कहानियों में मानी जाती है, छोटी कहानी। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। मैना की माँ का दामाद, मानिक बंदोपाध्याय।
बीच रात को गांव में पुलिस घुस आई। साथ में थे जोतदार चंडी घोष के आदमी कनाई और श्रीपति और कुछ लठैल। औरतें बारी बारी से घरों में जागती पहरे पर बैठी थीं। पुलिस के गांव में आकस्मिक आविर्भाव की खबर शंख और उलूध्वनि से फैल चुकी थी। अगर पुलिस तत्काल गांव को घेर लेने की तैयारी करती तो हारान के घर से भुवन मंडल भाग निकलता, गायब हो जाता। गांव भर के लोग जिसे छिपाकर रखना चाहते हैं, अचानक डाका डालकर भी शायद पुलिस उसे आसानी से न पकड़ पाती। 1.5 महीने से उनकी कोशिशें नाकामयाब रही। भुवन जब मर्जी इस गांव से उस गांव चला जाता है, लेकिन गांव घेरने की, कमर कसकर बैठने की कोई कोशिश भी आज पुलिस ने नहीं की। सीधे जाकर छोटे हांसतला मोहल्ले के कुछ घर घेर लिए, जिनमें से एक हारान का था। साफ हो गया कि साठगांठ पहले से बंधी हुई है। ये अंदर की खबर पाकर आए हैं। सालीगंज से उसे पुलिस ले जाएगी, यानी भुवन को। अपने गांव पर ऐसा कलंक वहां के गांव वाले नहीं सहेंगे। जब धान नहीं देने के नाम पर जान कबूल की है, तो वही जान इस अपने के लिए भी हाजिर है। सर्दी और नींद से सुस्ताए शरीरों में चुस्ती आ गई। लाठी, भाले, चाकू और कुल्हाड़ियां उठाए किसान झुंडों में पट गए। बीच रात के सालीगंज में किसी भयंकर की संभावना जाग उठी। इधर हारान कहता, हे भगवान। मैना की मां बोली, अब आप क्यों उठने लगे? कहकर भी वो जानती थी कि बुढ़े को सुनाई नहीं दिया। आंखों की रोशनी के साथ के सुनने की क्षमता भी कम हो गई है। उसे शायद समझ भी ना आया हो कि हुआ क्या है। वो बस बाहर का शोरगुल सुनकर घबरा गया है। लड़के और लड़की को तो समझा दिया गया है, पर इस बुढ़े को समझाना पड़ा तो इतनी जोर से चिल्लाना होगा कि बाहर घेरने वालों को सब कुछ सुनाई देगा। मैना की मां ने जल्दी से कुप्पी जलाई। हारान को उठाकर अंदर के खाट पर लिटाकर उंगली के इशारे से उसे चुपचाप पड़े रहने को कहा। फिर कुप्पी की रोशनी में बेटी की ओर देखकर दारुण अफसोस से फुफकार उठी। उफ, अच्छी वाली साड़ी नहीं पहन सकती थी? तुमने बोला कहाँ था? मैना बोली। मैना की मां ने टिन के ट्रंक का ढक्कन लगभग तोड़कर सूती की रंगीन साड़ी निकाली। मैना ने जो फटी साड़ी पहन रखी थी, उसे छीनते हुए उसे जैसे तैसे रंगीन साड़ी में लपेट दिया। बोली, घूंघट करना, लाज दिखाना, जैसे जामा जी के सामने दिखाती हो। भुवन से बोली, अच्छा सुन लीजिए, आपका नाम है जगमोहन, बाप का नाम सातकौड़ी, पता हाथीनाड़ा, थाना गौरपुर। कोई 150 किसान खेती के शस्त्र हाथ में लिए झुंड बनाकर आ पहुंचे थे। उनकी आवाज सुनकर मनमथ ने भी अपनी फौज हारान के घर के सामने इकट्ठा कर ली थी। बस 2-4 लोग घर के पीछे पहरे पर थे कि कहीं भुवन उधर से बाढ़ लांघकर भाग न निकले। मनमथ के पास 10 बंदूकों का दम था। उसकी अपनी भी रिवॉल्वर थी। फिर भी स्पष्ट था कि किसानों का ये उग्र रूप उसे असहज बना रहा था। जब परिस्थिति कुछ ऐसी थी, संघर्ष शुरू होने ही वाला था और मनमथ गोली चलाने का हुक्म देने जा रहा था, तब मैना की मां की उकताने वाली तीखी आवाज ठंडी सुन रात को चीरती फाड़ती हुई बाजू की। ठहरो ठहरो तुम लोग, हंगामा मत मचाओ। मेरे घर में कोई मुजरिम नहीं है। कोई चोर डकैत थोड़ी हूं कि घर में मुजरिम को छुपा लूं। शाम को दामाद आया है, बेटी और दामाद सो रहे हैं। दरोगा बाबू तलाशी लेना चाहते हो तो तलाशी ले। मनमथ ने कहा, भुवन मंडल है तुम्हारे घर में? मैना की मां बोली, देख आइए, तलाशी लीजिए। भुवन मंडल है कौन? ये नाम तो जिंदगी में नहीं सुना। बैसाख में बेटी का ब्याह कराया था। चांदी 2 तोले कम क्या हुए, दामाद ने उसकी तरफ देखना ही छोड़ दिया। 2 तोले का दाम भेज दिया तो दामाद आज पधारे हैं। आपको क्या बताऊं दरोगा बाबू, मेरी बच्ची तो रोते रोते मर गई। अरे वो रोती तो मैं भी रोती। ठीक है, मनमथ बोला, भुवन नहीं मिला तो तुम शौक से दामाद के साथ रात गुजारना। मैना की रंगीन साड़ी और बिखरा हुआ वेश देखकर मनमथ की आंखें चमक उठी। घूंघट की आड़ में खड़ी वो भीरू शर्मीली कच्ची उम्र की कृषक बालिका जैसे उसकी आंखों में मैल की तरह चिपक गई।
जैसे कोई कविता हो। पिए पास मनमथ को वो चुराए हुए स्कॉच विस्की की पेग या मिट्टी की दुनिया के जीर्ण ऑफिशियल जीवन में चुटकी भर रसीले जुनून की तरह लगी। उसे बाकायदा अफसोस हुआ कि जो तगड़ा और गंवार प्रौढ़ इसका पति है, उसी के लाड़ से इसका वेश यूं बिखरा हुआ है। फिर भी मनमथ पूछताछ करता है, शक दूर करने के लिए गांव के 2 बुढ़ों से शिनाख्त भी करवाता है। इसके बावजूद उसे विश्वास नहीं होता। भुवन चुपचाप खड़ा था चादर ओढ़े। जहां तक हो सका उसने बेचारों सी सूरत बना रखी थी, लेकिन नुकीले बालों से भरा चेहरा और रूखे बिखरे सिर के बालों के कारण वो नया दामाद तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। मनमथ ने गरज से सवाल किया, ये तुम्हारी नवासी का पति है? हारान बोला, हे भगवान। मैना की माँ ने कहा, ये बेकार ही पूछ रहे हैं, इनको कुछ सुनाई नहीं देता, एकदम बहरे हैं। ओ, मनमथ बोला। अब कुछ करने को बचा नहीं था, घर की तलाशी लेकर उसे तहस नहस करने के सिवा। शक की बिना पर दामाद को गिरफ्तार करके ले जाया जा सकता था, पर उससे हंगामा होता। 2 कदम पीछे हटकर भी किसानों का झुंड वहीं खड़ा था। चक्रव्यूह अभी टूटा नहीं था। गांव गांव में किसानों के भीतर एक अद्भुत आक्रामकता आ गई थी, जैसे उन्हें किसी चीज का डर न हो। घर घर में तलाशी होने लगी। जिन घरों में एक बिल्ली के छिपने लायक भी जगह न थी, वहां तक चादर, तकिए, बर्तन उलट पलट कर मनुष्य की खोज चलती रही। मैना की माँ ने बेटी से कहा, सर्दी में कपकपी लग रही है, अंदर जाके सो जाना बेटा। मनमथ अब भी इनके घर पर ही है। आप भी सो जाइए दामाद जी। आप अनुमति दे दीजिए दरोगा बाबू, कितनी मिन्नतें करके नाक रगड़ के जमाई बाबू को लाई हूं। मैना की माँ का गला भर आया, आपसे क्या कहूं दरोगा बाबू। मैना अंदर जाकर लेट गई। भुवन नहीं गया। मैना की माँ ने उससे 2 और बार स्नेहपूर्वक अनुरोध किया। जब इसके बाद भी भुवन अगर मगर करता रहा, तो उसने कुछ दृढ़ता से कहा, बड़ों की बात मानो, जाओ अंदर, यहाँ खड़े खड़े क्या करोगे, दरवाजा बंद करके सो जाओ। तब भुवन ने आज्ञा का पालन किया। अब इसके बाद भी क्या कोई कह सकता था कि ये दामाद नहीं है? मनमथ ने धीरे धीरे बाहर की ओर कदम बढ़ाए। जेब में से चपटी शीशी निकालकर गटकने लगा। रातों रात ये खबर चारों तरफ फैल गई। दोपहर से पहले ही बात हाथीपाड़ा के जगमोहन, जोतदार चंडी घोष और बड़े थाने के बड़े दरोगा के कानों तक पहुंच गई। गांव गांव में इस घटना की चर्चा होती और लोग हंसते, साथ ही मैना की माँ की दाद भी देते। ऐसा मजाक तो पुलिस के साथ कभी किसी ने ना किया होगा, ऐसा सबक उन्हें किसी ने ना सिखाया होगा। दिन ढल जाने पर कल जिस समय भुवन मंडल ने गांव में कदम रखा था, आज उसी समय जगमोहन का आगमन हुआ। फिर जगमोहन सड़क पार से कुछ लोगों से बतियाता हुआ गया हारान के घर की तरफ, अपने ससुराल की तरफ। अचानक दामाद आधम का, चेहरे पर काले बादल लिए। देखते ही मैना की माँ ने आने वाली विपत्ति को भांप लिया। अस्थिर होने के बजाय उसने हंसते मुस्कुराते शांत भाव से उसका स्वागत किया, जैसे कि उसे आस रही हो, खबर रही हो कि दामाद जी आने वाले हैं। ये कोई अनहोनी नहीं है। बोली, आओ बेटा आओ, ओ मैना मोड़ा लेकर आ, घर पर सब ठीक है ना, समधी समधन जी, बच्चे? हाँ। मैना की माँ थोड़ा और घबराई। दामाद के इस कटे छटे हुए जवाब में न जाने कितना गुस्सा भरा हुआ है। जिस तरह से वो मैना की तरफ देख तक नहीं रहा था, आसार अच्छे नहीं लग रहे थे। जैसे कि जगमोहन ने प्रण ले लिया हो कि वो धूप में खिले लौकी के सफेद फूल के सिवा ससुराल का और कुछ भी नहीं देखेगा। लक्षण ठीक नहीं लगते। अंदर से हारान का कांपता हुआ स्वर सुनाई दिया, नहीं आया, हरामजादा नहीं आया, हे भगवान। पोते को ढूंढ रहे हैं, मैना की माँ ने जगमोहन से कहा। सुबह से देखा नहीं, बेचैन हो रहे हैं। मुंह हाथ धो लेते तो? नहीं, अभी निकलूंगा। अभी निकलेंगे? हाँ, एक खबर सुनकर आया हूं, सच है या झूठ ये जानकर चला जाऊंगा। आपकी बेटी कल रात किसी और के साथ सोई थी?
सोई थी? मैना की माँ चौंक उठी। मेरे साथ सोती है, मेरे ही साथ सोई थी, और किसके साथ सोएगी भला? पूरी दुनिया जानती है किसके साथ सोई थी। सब अपनी आंखों से देख चुके हैं दरवाजा बंद करके किसके साथ सोई थी। बस फिर क्या था, सास दामाद में जंग छिड़ गई। शुरू में तो मैना की माँ ने ठंडे दिमाग और नर्म शब्दों से मामला समझाने की कोशिश की, लेकिन जगमोहन ने जिद पकड़ ली थी। अंततः मैना की माँ भी गर्म हो उठी। बोली, तुम खुद बुरे हो इसलिए दूसरे को बुरा समझते हो। आंगन में लोगों की भीड़ लगी थी, मैं सामने खड़ी थी, पल भर के लिए दरवाजा क्या बंद किया, तुमको पाप दिखने लगा? कोई और तो ऐसा नहीं कहता। किसी और को क्या मतलब? किसी और की बीवी होती तो वो कहते। बड़ा छोटा दिल है तुम्हारा। आज मंडल के नाम पर ऐसा कह रहे हो, कल क्या पता पूछ बैठो जवान भाई से क्यों बोलती है? पूछना ही चाहिए, वो लड़की कुछ भी कर सकती है। तब बात सिर्फ बातों की गर्माहट तक सीमित नहीं रही। मैना की माँ ऊंची आवाज में जगमोहन के पूरे खानदान को गलियाने लगी। फिर धीरे धीरे वहां गांव की दूसरी औरतों की भीड़ जमा होने लगी और जगमोहन कुछ चिढ़कर बाहर जाकर बैठ गया। फिर धीरे धीरे मैना की माँ उसके लिए कुछ खाने को लेकर आई तो वो थोड़ा सा नर्म हुआ। जगमोहन बैठे बैठे कुछ सोचने लगा। उसने मैना को और नहीं रुलाया। मैना की माँ अंदर आई, थाल में सजाकर दामाद को मूढ़ी और मोए दिए। मोए यानी एक किस्म के लड्डू होते हैं जो कि चिवड़े वगैरह से बने होते हैं। बोली, माफ करो, खा लो। फिर बोली, रात गए क्यों निकलना बेटा, ठहर जाओ। नहीं ठहर सकता, माँ ने कसम दी है। फिर खाना खाकर जाओ, चूल्हा जलाओ। बच्चे को पकड़कर ले गए, मेरी तो जान जली जा रही है। ये मैना के भाई को लेकर गए हैं पुलिस वाले, मैना के बेटे को लेकर गए। तुम रुकते तो थोड़ी ठंडक मिलती। नहीं, रात होने लगी है। फिर कब आओगे? देखता हूं। उठते उठते भी देर होती है। फिर आज शाम भी कल बीच रात की ही तरह पुलिस के डाके का शोर उठा। पूरा झुंड लेकर मनमथ ने आज फिर डाका डाला है। आज उसकी फौज कल से भी ज्यादा भारी थी। उसकी आंखें सफेद थी। पहुंचते ही पहले हारान के घर आ धमके। क्यों भाई मंडल की सासू माँ? मनमथ ने मैना की माँ से कहा। दामाद कहाँ है? मैना की माँ चुपचाप खड़ी रही। अब ये कौन है? दामाद जी, मैना की माँ ने कहा। अरे भाई वाह, तू तो बड़ी किस्मत वाली छिनाल है, रोज नए नए दामाद आते हैं। और छोकरी तो इस उम्र में? मनमथ ने हाथ बढ़ाया था चुटीले लहजे में मैना की थोड़ी पर हाथ रखकर उसे जरा सा हिला देने के लिए। उसे चकित करते हुए जगमोहन फुदक कर मैना के आगे आकर गरज उठा। जबान संभाल कर बात करिए। घर के हर सदस्य को, यहाँ तक कि हारान को भी गिरफ्तार करके ले जाते वक्त मनमथ ने गौर किया कि कल की तरह न हो, पर भीड़ आज भी काफी जम गई थी। लोग झुंडों में चारों तरफ से आ रहे थे। भीड़ बढ़ती जा रही थी। मथुर का घर पार करके तालाब तक पहुंचने के बाद रुकना पड़ा। कल की तुलना में 7-8 गुने ज्यादा लोगों ने मिलकर उनका रास्ता रोक लिया था। अभी ज्यादा रात नहीं हुई थी। केवल इस गांव से नहीं, बल्कि दूसरे कई गांवों से लोग आ पहुंचे थे। इतना मनमथ ने नहीं सोचा था। मंडल के लिए होता तो फिर भी समझ में आता, पर हारान के घर वालों के लिए चारों ओर के गांवों से लोग भागते आए हैं। आंधियों से परिपूर्ण उस मानव समुद्र के साथ लड़ा नहीं जा सकता था। मैना झटपट पल्लू से जगमोहन का खून पोंछने लगी। 90 साल का बूढ़ा हारान वहीं जमीन पर बेटी की गोद में लेटते हुए पोते के लिए व्याकुल होकर कांपती आवाज में बोलता रहा। छोकरा कहाँ गया, कहाँ गया, हे भगवान। एकदम अच्छी। सच में शीतमा, ये एक सबसे अच्छी कहानियों में गिनी जानी चाहिए। वैसे सारी दुनिया की अच्छी कहानियों में एक अच्छी कहानी गिनी जानी चाहिए, ये मेरी राय है। आज एक सरप्राइज है आपके लिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ सर, बिल्कुल। हाँ सर। चलिए सर, आज की शाम यहाँ खत्म होती है। अगले महीने
फरवरी का महीना है और मैं सोच रहा हूँ कि अगले महीने के लिए हम शीर्षक रखते हैं प्रेम कहानी। प्रेम कहानियां मिलना बहुत आसान होंगी, किसानों की तरह मुश्किल नहीं होंगी। तो अगर आप सबको एतराज ना हो तो अगले महीने का शीर्षक होगा, विषय होगा प्रेम कहानी, लव स्टोरी। सभी मित्रों से गुजारिश है, साल की शुरुआत है, हमारे कथा कथन के माता पिता सुनील सर, एक जोरदार तालियां शुरुआत में हो जानी चाहिए तभी से अनम्यूट करके। चलिए दरअसल हम लोग इला वगैरह से जो आए हुए हैं वहां पर, उनसे सच में हमको थोड़ा सा जेलस हो रही है। रश हो रहा है सर, रश होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग आए हैं। एक और नहीं, तो पूरी पलटन है। We are really envying you. Very jealous. सच में काश हम भी वहाँ आ पाते सर। बस ये मोटिवेशन होना चाहिए कि फरवरी की बैठक में सब लोग जो मतलब कलर में वो तो आए कम से कम। अरे मैं तैयार थी, घर के सामने मेट्रो का काम चल रहा है ना गाड़ी आ रही, मैं जा रही हूँ। ये तो मैंने पहले कहा, तो मैं आ रही। We miss, really बहुत मिस कर रहे हैं। इतने में तो 9 महीने में एक अच्छी सृष्टि हो जाती है, हमको निकलने नहीं मिल रहा है, ये हालात हो गए। कोई बात नहीं। But nice to see all of you. Happy New Year to all of you. भगवान करे हमारा कथा कथन बढ़े, हम लोग शाखाएं हैं, हमारे साथ और सारे पत्ते जुड़े ताकि ये विस्तृत हो जाए। बहुत अच्छा लग रहा है। Nice to see all of you. चलिए, होती है मुलाकात। अरे यार मैं किधर जाऊँ? कहानियों के साथ। अरे आप तो चली गई थी। अरे ज्यादा जगह घेर रहे हैं ना। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। लता जी, हैप्पी न्यू ईयर। लता जी, मैं प्रतिमा को बता रही थी कि आपकी मदर टंग हिंदी नहीं है, लेकिन अब सुनकर कोई कह नहीं सकता है कि आपकी मदर टंग। माय गॉड। और ना आप ना कहानी सुनाते हो ना, बिल्कुल कैरेक्टर में घुस जा रही थी, बहुत मजा आ रहा था हमको। ओह माय गॉड। सिरचन बाहर आ गया था, सिरचन बाहर आ गया था, शीतल पाटिल बता। ईला, आपसे और प्रतिमा जी से अगर ऐसा कुछ अप्रिसिएशन होता है ना, तो आई विल बी जस्ट एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बहुत मजा आया। सो नाइस, ओह सो नाइस। गुरप्रीत, एक रिक्वेस्ट है, सबका एक फोटो खींच लेना ताकि हम लोग याद करेंगे कि हमें अगले महीने मतलब वो तो हम करने वाले हैं। फोटो और जगन वाला फैक्टर क्रिएट करेंगे ना, इसलिए करके मिलने के लिए आए हैं, तो मतलब बनेगा उसका। जी पक्का, बाकी फोटोग्राफी तो चलती रहती है। यस बिल्कुल। चलिए मिलते हैं अगले महीने तक। ओके। यस सर। कहाँ से बुला लेता हूँ, आप आ जाइए। इसको कैसे बंद करते हैं भाई? इसको कैसे बंद करते हैं? इसको ऐसे बंद करते हैं। रीना जी, लता जी, चलो नाउ लीव। चलते हैं। हाँ, श्रीतमा वेरी नाइस। जय हिंद। जय हिंद। ऑल ऑफ यू। थैंक यू।